हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का। ये नेमरा सुंडा बुक का पीडीएफ है और ये जस्ट मैं रीड करूँगी और आप लोग आराम से सुनिए, क्योंकि इसका बनाने के पीछे बस मोटिव इतना है कि किसी किसी के पास नेमरा सुंडा बुक नहीं होती या फिर कभी कभी बुक पढ़ने का मन नहीं करता, पर हम लोग मोबाइल हमेशा साथ में ही रखते हैं। तो मोबाइल साथ में रखें तो क्यों ना इसको यूटिलाइज़ कर लिया जाए, है कि नहीं। जस्ट हम लोग पढ़ते जाएंगे, इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कुछ कवर करना है। प्लांट फिजियोलॉजी से मैंने स्टार्ट किया है। तो द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। फोटो रिस्पिरेशन इज एनर्जी स्पेंडिंग प्रोसेस. मास फ्लो is affected by transpiration. Conversion of fat to sugar occurs in glycosome and this cycle is called glycosylate cycle. Photorespiration occur in chloroplast. Photosynthesis is an oxidation reduction process, means redox process. Photosystem 2 is absent in C4 plants. Precursor of IAA, indole acetic acid, is tryptophan. Father of plant physiology is Stephen Hales. Cobalt is a constituent of vitamin B12. It is also called cyanocobalamin. Law of tolerance introduced by Selford. Glycolysis occur in the part of cell, that is cytoplasm. Krebs cycle and ETC occurs in mitochondria. Final product of glycolysis is pyruvate. Light or Hill reaction take place in grana of chloroplast. Dark reaction और Kelvin cycle, डार्क रिएक्शन को Kelvin cycle भी बोलते हैं, which takes place in stroma of chloroplast. Most abundant protein in the world is Rubisco. One molecule of glucose is produced 686 kilocalorie. Highest water use efficiency is in CAM plant, which is followed by C4 and C3 plant. Crange type leaf anatomy found in C4 plant. Kelvin cycle and Hatch and Slack occur in chloroplast. Photosynthetic rate highest in C4 plant. Glucose is a type of sugar which is called monosaccharide. Sugar which is sweetest among all sugar is fructose. Examples of disaccharide are maltose, lactose, sucrose. Non-reducing sugar is sucrose, very important. Non-reducing sugar कौन सा है? सुक्रोज. Sugar found in germinating seed, maltose, ये भी important है. Lactose is a combination of glucose plus galactose. Term protein was coined by Mulder in 1840. The term enzyme was coined by W. Cutins. Lock and key model was proposed by Fisher, बहुत important है. Lock and key model was proposed by Fisher. The term enzyme was coined by W. Cutin. Term vitamin was proposed by Funk. Bond that join amino acid is carboxyl. Crane's anatomy was shown by which type of plant is. Who used the term florigen for flowering stimulant hormone? M. Chalaikyan. मिनरल एलिमेंट विच इज़ इन्वॉल्व इन स्टोमेटल मूवमेंट इज़ पोटेशियम. पोटेशियम है जो कि स्टोमेटल मूवमेंट में हेल्प करता है. लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन थैलाक्वाइड, जो कि ग्रेना में होता है. ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ मॉइस्ट सीड इज टर्म्ड एज स्ट्रेटिफिकेशन. आरएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन राइबोसोम. दिस इज़ इसेंशियल फैक्टर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड. मतलब सीड के जर्मिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल फैक्टर क्या होता है? तो एरेशन होना चाहिए. सोकिंग अप ऑफ वाटर बाई ड्राई सब्सटेंसेस ड्यू टू हाइड्रोफिलिक कोलाइड इज इम्बाइबेशन. श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज प्लाज्मोलाइसिस. द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज समवट गुड ऑन C4 प्लांट बिकॉज दे आर इफिशिएंट यूजर ऑफ CO2. जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो CO2 कंटेंट भी बढ़ेगा. CO2 कंटेंट बढ़ेगा तो C4 प्लांट है वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं CO2 को यूज़ करने के लिए, इसीलिए इनको फ़ायदा हो सकता है. बाकी C3 प्लांट को फ़ायदा नहीं होता इससे. Emerson and Lewis, they observed that quantum yield declines sharply at wavelength greater than 600 nanometer in red zone, also called red drop. The red spectrum, which is in the range of wavelength 580 nanometer to 680 nanometer of light, which is most effective for inducing flowering in both short day and long day plant. Otto Warburg
in 1920 found that photosynthesis in algae was inhibited by O2. This occurs in all C3 plant and this effect is known as Barberg effect. The light intensity at which the photosynthetic intake of CO2 is equal to respiratory output of CO2 is called compensation point. Therefore, net photosynthesis is zero at compensation point. The cold treatment to plant, bud or seedling in order to fulfill a specific low temperature requirement, especially for cool loving plant, is known as vernalization. The term vernalization was coined by T.D. Lysenko. Translocation of water and nutrient from roots to above ground part of plant take place through xylem. Mineral deficiency in plants can be quickly corrected by foliar spray. In water molecule, angle between H2 and O2 molecule is, it means OH, दिस एंगल, इसकी बात किया जा रहा है कि इसके बीच में जो एंगल होता है वो 105 डिग्री होता है. कहीं कहीं पे आपको 104 डिग्री भी देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन कुछ भी रहे आप समझ जाइएगा. द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज कॉल्ड होलार्ड. Mass flow, pressure flow theory for the movement of food was given by Munch. Most abundant chemical present in cell wall is lignin. Accumulation of hormone during stress is proline. Photorespiration occur in C3 plant in light only. Nutrient involved in the biosynthesis of IAA is zinc. This is the type of protein and corresponding presence. कोलेजन प्रोटीन कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? तो मसल्स में, केराटिन हेयर्स में एंड नेल्स में. फाइब्रोइन होता है सिल्क में, इलास्टिन होता है जो इंसेक्ट विंग्स में होता है, एंड रेगुलेटरी जो प्रोटीन होता है वो इंजाइम्स में होते हैं. अब हम लोग बात करेंगे पहले यूनिट जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी जहाँ से स्टार्ट होती है. इसके पहले हमने जो देखा वो प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. प्लांट फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वाइटल और फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स. डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न मीन्स टू स्प्रेड और टू डिस्पर्स इन ऑल डायरेक्शन. द मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन अंटिल अ इक्विलिब्रियम इज रीच्ड अमंग मोलिक्यूल थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस इज नोन एज डिफ्यूज़न. इसका एग्जाम्पल है स्प्रेडिंग ऑफ सेंट मोलिक्यूल इन रूम. यदि आप परफ्यूम लगाते हो तो वो सारे मतलब उसकी जो खुशबू है वो पूरे रूम में फैल जाती है, इनफैक्ट पूरे घर में फैल जाती है. तो ये डिफ्यूज़न की वजह से होता है. अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूज़न आर गैस इनटू लिक्विड. यदि लिक्विड में कोई गैस डिफ्यूज़ कर रहा है तो फोम का फॉर्मेशन होगा. गैस में यदि लिक्विड जा रहा है तो क्लाउड बनेगा. गैस में यदि सॉलिड जा रहा है तो स्मोक बनेगा. Osmosis, it is a special type of diffusion of liquid through a semi-permeable membrane. Means diffusion of liquid from lower concentration of solution to higher concentration through semi-permeable membrane. Osmosis occurs only in liquid. Plasma or cell membrane is a semi-permeable membrane, that is example swelling of kismis in water. इन प्योर सॉल्वेंट द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज ज़ीरो. इंडोऑस्मोसिस क्या होता है? द सॉल्वेंट ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज इंटर इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंडोऑस्मोसिस. मतलब कि यदि कोई सेल है और उसके बाहर कोई सॉल्वेंट है जिसका कॉन्सेंट्रेशन अंदर का मतलब सेल के कॉन्सेंट्रेशन से कम है तो वो सेल के अंदर जाएगा. इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंडोऑस्मोसिस. एग्जाम्पल, जो किसमिस है वो स्वेल करता है यदि हम लोग वाटर में डाल दें तो ये इंडोऑस्मोसिस की वजह से होता है. व्हाट इज एक्सोऑस्मोसिस? द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन मीडियम इज नोन एज एक्सोऑस्मोसिस. इसका एग्जाम्पल, इन पिकल्स सॉल्ट एक्ट एज एक्सोऑस्मोसिस इन बैक्टीरियल सेल एंड किल्ड माइक्रोब्स. व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? Plasmolysis is the shrinkage of protoplasm due to outward flow of water in a hypertonic solution. If a plasmolyzed cell is kept in pure water, the cell attains their original shape and size due to endosmosis. This phenomenon is called deplasmolysis. Example, excessive use of fertilizer in soil kill the plant due to plasmolysis.
डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट, जिसको DPD भी बोलते हैं, इसको सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। इसका सबसे मेन है कि फॉर्मूला आप याद रखें, DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP। यहाँ पे OP जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, TP है जो कि टर्जर प्रेशर है, इसी को वॉल प्रेशर भी बोलते हैं। इट इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया बाय विच वाटर एंटर्स इनटू अ सेल। When water enters in a cell due to swelling or outward pressure extended by cell solution in the cell wall is known as turgor pressure. When water enters in cell, the cell wall exert an opposite or inward pressure in cell membrane is called wall pressure. Water potential is always negative and maximum value is 0. वाटर पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो होता है, नहीं तो जनरली ये नेगेटिव ही होता है। सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो मीन्स लो, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन लो होगा। हाइपर मीन्स हाई, मतलब इसका स्ट्रॉन्ग या फिर हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा। आइसो मीन्स इक्वल, मतलब नीदर वीक नॉर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। जैसे आई ड्रॉप हमेशा आइसोटोनिक होता है, जो हमारे आई का कॉन्सेंट्रेशन होता है वही सेम कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो होता है आपके आई ड्रॉप का। इम्बाइबेशन, the adsorption of water by dry woody substance due to hydrophilic collide is called imbibition. Example, absorption of water by dry woods. यूनिट 2 की बात करें वाटर रिलेशन की, तो absorption of water by plant, the absorption of water take place in the terminal portion of root, that is root hairs. मतलब जो रूट हेयर्स होते हैं प्लांट्स के, वही सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। रूट हेयर्स आर मोर डेवलप्ड इन जेरोफाइट्स एंड एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स। जो जेरोफाइट्स मतलब कि जहाँ पे जो प्लांट्स एरिड रीजन में ग्रो कर रहे हैं, मीन्स जहाँ पे कम वाटर है वहाँ पे रूट हेयर्स ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि उसको दूर दूर से जाके वाटर एब्जॉर्ब करना होगा। एंड हाइड्रोफाइट्स में एब्सेंट होंगे। क्यों एब्सेंट होंगे? क्योंकि वो तो ऑलरेडी वाटर में है, तो वो क्या मतलब उसको एब्जॉर्प्शन की क्या ज़रूरत है। टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू एक्टिविटीज़ ऑफ रूट्स एंड मेटाबॉलिक एनर्जी स्पेंट इन नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन। मतलब इसमें एनर्जी कंज्यूम करेगा रूट, तभी वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन कर पाएगा, और ये बहुत कम पोर्शन जो वाटर के होते हैं वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू एंटर करते हैं। पैसिव एब्जॉर्प्शन मेन है, जिसको मेनली प्लांट यूज़ करता है। पैसिव एब्जॉर्प्शन इज कंट्रोल्ड बाय एक्टिविटीज़ ऑफ एरियल पार्ट्स, दैट इज शूट्स, लीव्स एंड प्लांट्स ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय ट्रांसपिरेशन। हेंस एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। प्लांट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ वाटर बाय पैसिव एब्जॉर्प्शन। एसेंट ऑफ सेल सैप, मतलब सेल सैप कैसे ऊपर जाता है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम स्टेम बेस टू ट्री टॉप इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप, फर्स्ट वन इज़ वाइटल थ्योरी। इसमें हम लोग रिले या फिर क्लैम्बरिंग पंप थ्योरी के बारे में बात करेंगे, और दूसरा होता है पल्सेशन थ्योरी। इसमें ज़्यादा हमें नहीं जानना है, बस ये जानना है कि जो रिले थ्योरी है उसको गोडलेवेस्की ने दिया था 1884 में, एंड पल्सेशन थ्योरी है इसको जेसी बॉस ने दिया था 1923 में। रूट प्रेशर थ्योरी, इट इज़ क्वाइंड बाई स्टेफन हेल्स, जिसको प्लांट फिजियोलॉजी का फादर भी बोलते हैं। हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी इसको नोट किए थे। द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स इज कॉल्ड रूट प्रेशर। इट इज़ मेजर्ड बाय मैनोमीटर। फिजिकल थ्योरी, फिजिकल थ्योरी में हम लोग बात करेंगे कैपिलरी थ्योरी, इम्बाइबेशनल थ्योरी, कोहेशन थ्योरी, कोहेशन एंड एडहेशन थ्योरी, जिसको कि ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी बोलते हैं। कैपिलरी थ्योरी है, इसको दिया गया बोहेम इन 1809 में। ही स्टेटेड दैट वाटर राइजेज इन नैरो ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन। इम्बाइबेशनल थ्योरी अकॉर्डिंग टू सैक्स इन 1878, इम्बाइबेशन एक्टिविटी ऑफ सेल वॉल ऑफ जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सैप। कोहेशन एंड एडहेशन थ्योरी, जिसको ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी बोलते हैं, ये दिस थ्योरी वाज प्रोपोंडेड बाय डिक्सन एंड जॉली इन 1894। दिस थ्योरी इज मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट, प्लांट में वाटर कैसे लेता है ये तो हमने देख लिया, लॉस कैसे होता है। तो सबसे पहले तो ट्रांसपिरेशन, जो कि सबसे ज़्यादा लॉस करने में मतलब इसी का कंट्रीब्यूशन है।
99% जो वाटर एब्जॉर्ब होते हैं वो ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में ही लॉस होते हैं. The loss of water in the form of living aerial parts of the plant in the form of water vapor is known as transpiration. Transpiration is necessary evil. ये evil है but necessary है, होना ज़रूरी है. It cools down the leaf surface of plant. Nearly 99% of water absorbed by the plant is lost in transpiration. It is vital and unavoidable phenomenon of plants. Transpiration is regulated by stomata activities. The principal organ of transpiration is leaf. Again, foliar transpiration is of two types, with stomatal and cuticular. जो स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन होता है वो 80 to 90% होता है और क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है वो अप टू 20% होता है. अब बात करेंगे स्टोमाटा की. दीज आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर लीफ सरफेस, बट इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट मेनली ऑन लोअर surface of leaves. Therefore, approx 97% of transpiration take place from the lower surface in such plant. Each stomata has two kidney-shaped guard cell. Inner wall of guard cell is thick and outer wall is thin. Mechanism of stomata opening and closing. मतलब स्टोमाटा कैसे ओपन एंड क्लोज होता है इसका मैकेनिज्म देखते हैं. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा आर ड्यू टू इट्स टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी रिस्पेक्टिवली. मीन्स स्टोमाटल मूवमेंट इज गवर्न्ड बाय टर्जर प्रेशर. When turgor pressure of guard cell increases, stomata are opened, and when decreases, stomata are closed. Rate of transpiration is determined by photometer या फिर इसको पोटोमीटर भी बोलते हैं. Guttation. Guttation term was given by Bergerstein. आप आराम से याद रख सकते हैं बर्गरस्टीन ने गटेशन टर्म दिया है. The exudation of water with salt and mineral through hydrothode is called guttation. Hydrothode क्या होता है? Structure present in tips of vein of leaf. It is caused due to root pressure. Guttation normally occur at night. Night के टाइम पे जनरली गटेशन होता है. हम लोग यूनिट 3 पे आते हैं, फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करते हैं तो पहला है क्लोरोफिल पिगमेंट. Chlorophylls occur in grana of plastid and are associated with thylakoid membrane. The center of porphyrin ring of chlorophyll A and B contains a single atom of magnesium. Chlorophyll pigment are of two types. First one is chlorophyll A and second is chlorophyll B. Chlorophyll A का जो empirical formula है C55H72O5N4Mg, याद रखिएगा. अक्रेंस जो है इसका यूनिवर्सल है इन ग्रीन प्लांट्स. क्लोरोफिल बी का जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो है C55H70O6N4Mg और ये प्रेजेंट होता है हायर प्लांट्स में एंड इन ग्रीन एल्गी बट एब्सेंट इन रेड प्लांट.